तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है सेल साइकिल। डेफिनेशन क्या है सेल साइकिल की, डिफरेंट फेजेस क्या हैं सेल साइकिल के, और उसके चेक पॉइंट्स क्या हैं। तो सेल साइकिल है क्या? ए सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट ए सेल passes through from a time until it reproduce its replica। तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जब इसमें क्या होता है कि एक सेल दो सेल के अंदर चेंज हो जाता है। इट इज द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल इनटू डॉटर सेल एंड डुप्लीकेशन। इसमें रेप्लिकेशन भी होती है और दो सेल भी बनते हैं। In prokaryotes, cell cycle in eukaryote cell, the cell cycle can be divided into two periods: interphase and mitosis. The cell cycle has four phases: G1 phase, S phase, G2 phase, and M phase. This G1 phase, S phase, and G2 phase belong to interphase, and M phase contain prophase, metaphase, anaphase, and telophase, and then cytogenesis. Cell division: every hour, about 1 billion cells die and 1 billion cells are made in our body. Part of the cell cycle include making new cells in a process called cell division. ठीक है। Phases of cell cycle क्या है? It consists of two major phases. One is interphase G1, which is known as pre-synthetic phase, and S phase, which is known as DNA synthesis phase, and G2, which is known as pre-mitotic phase। सेल डिवीजन माइटोसिस फेज जो है उसमें मैं आपको बताया कि चार फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इंटरफेज क्या है? ड्यूरिंग दिस फेज the cell grows, accumulating nutrient needed for mitosis and duplicating its DNA। ठीक है। तो इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट, अगर लेट्स सपोज के सेल साइकिल 90 घंटों के अंदर पूरा हुआ है तो 90 में से 89 जो आवर्स हैं, 99 जो आवर्स हैं वो किसके होंगे? इंटरफेज के। और एक घंटा होगा किसका? माइटोस का, ड्यूरिंग विच द सेल स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट सेल्स। द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम आवर टू ईयर। ये आप दे सकते हैं। ये जो आपकी इंटरफेज है इसमें G1 S और G2 फेज होती है। ठीक है। वेयर सेल स्पेंड मोस्ट 90% ऑफ इट्स टाइम, often called the resting phase, but cell is not at rest, cell is not dividing but it is active। So it is highly active, but it is not dividing. Interphase, it is the longest phase in typical human cell. Out of 90 hours, interphase lasts for 89 hours। Characteristics of interphase क्या हैं? It is the resting phase of the cell। इसमें cell के division नहीं होती। Cell refer to the rest from division, but the cell in the interphase are metabolically active। इसमें जो है ना cell metabolically active होता है। The metabolic activity are high in this phase. The cell grows during this phase. During this phase, messenger RNA and ribosomal RNA, which are very necessary for protein synthesis, are synthesized. The chromosome duplicate into two chromatids, the centriole during S phase. Centriole duplicate into two. The two centrioles are formed. The centrospheres of the centriole microtubules arise. These microtubules form esters. Stages of interphase. Interphase consists of three substages: G1 phase, S phase, and G2 phase. What is G0 phase? It is the resting phase in the cell. Cyclin D is a decreased concentration। जब तक ये जो साइक्लिन डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी फास्फोराइलेशन ही आरबी प्रोटीन की फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो वो हाइपोफास्फोराइलेटेड फॉर्म में होगी, तो वो एक्टिव फॉर्म में होगी ये प्रोटीन, और G1 फेज ही रहेगी।
Hence, hold the cell cycle at the checkpoint 1 by inhibiting the expression of several transcriptional proteins, which is known as E2F, that code cyclin A and E necessary for cell cycle progression. तो अगर G1 G नॉट ने G1 में कन्वर्ट होना है तो इन प्रोटीन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी नॉट फेज में ये इनहिबिट होती हैं। ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट टेक्स द जी नॉट सेल्स टू G1 फेज। तो जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो फिर एक्टिवेशन करते हैं साइक्लिन ए और ई की, और अगली स्टेज स्टार्ट होती है। इन इंटरफेस द सेल prepare itself to cycle. The term post mitotic is sometimes used to refer both quiescent and senescent cells। ये क्वेसेंट सेल्स वो होते हैं जो उनमें एबिलिटी होती है कि वो वैसे तो वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, लेकिन उसमें एबिलिटी होती है कि वो रिवर्सिबल स्टेट में आके सेल प्रोलिफरेशन भी करें। लेकिन सेनेसेंट सेल जो है ना उनमें वो इरिवर्सिबल यानी कि वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते। Non-proliferating cell in the eukaryote generally enter the quiescent G0 state from G1 and may remain quiescent for a longer period of time or indefinite। ये मसलन कार्डियक सेल और न्यूरॉन सेल जो है ना ये जब क्वेसेंट सेल्स में चेंज हो जाते हैं तो ये साला साल नहीं डिवाइड होते, यानी कि अगली फेज में नहीं आते। इन मल्टी सेल eukaryote cell enter the G0 phase from G1 phase and stop dividing, ठीक है। और third phase सेमी परमानेंटली, मसलन कि ये जो लीवर के सेल हैं और किडनी के सेल हैं इनमें ये डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये साला साल ये भी डिवाइड बाज़ औक़ात नहीं करते। अच्छा, cell leave the cell cycle can be temporarily or permanently, यानी कि उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है। अगर टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है उसको क्वेसेंट कहेंगे, अगर परमानेंटली स्टॉप हो जाती है उसको सेनेसेंट सेल कहेंगे, बट नॉट नेसेसरी डेड। एग्जांपल क्या है, न्यूरॉन्स G1 फेज भी काफ़ी लॉन्ग है, एस फेज भी काफ़ी लॉन्ग फेज है, G2 फेज शॉर्ट है लेकिन M फेज से बड़ी है। तो ये सेल साइकिल की जो है ये 4 स्टेजेस बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें आप देख सकते हैं जी सेल ग्रो करता है G1 फेज में, ठीक है। फिर ये एस फेज में आता है, जो सिंगल क्रोमेटेड होते हैं वो रेप्लिकेशन के बाद डबल क्रोमेटेड में चेंज हो जाते हैं। फिर G2 फेज आती है, फिर G2 में सेल प्रिपेयर करता है कि वो M फेज में आ जाए। तो जो जी फेज होती क्या है, जी स्टैंड फॉर गैप, इट इज द फर्स्ट फेज विद इन द इंटरफेज। इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज। दिस फेज इज द गैप period between mitotic phase and the S phase in the form of G1 and G2 phases। Cell is preparing for S phase। S phase G1 के बाद जो G1 के अंदर वो S phase के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, और G2 के बाद वो G2 के अंदर वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। This period start immediately after division। The daughter cell grows and increases size during this phase। It is a longer phase, it lasts for 7 years। The nerve cell remain permanently in the G1 phase। मैंने कहा था ये जिन्हें वो senescent cell, generally this stage lasts for 25 to 50% of the total interface जो G1 phase है। During this phase 20 amino acids are formed from which millions of protein, अब तो 22 हो गए हैं, जैसे millions of protein and enzyme are formed which are required in S phase। During this phase messenger RNA, ये G1 की बात हो रही है, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA are formed during this phase। New cell organelle are formed। Concentration of cyclin D increases, resulting in phosphorylation and activation of necessary transcriptional proteins, resulting in the synthesis of DNA polymerase and
HFR factor, which is required for the DNA replication. Formation of cycling E is necessary for the transition from G1 to S phase. ये जब साइक्लिक ई बन जाता है फास्फोरिलेशन की वजह से, ठीक है, साइक्लिन काइनेजेज जो हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज जो हैं वो फास्फोरिलेशन कर देते हैं, तो फिर ये जी1 से किस फेज में चला जाता है, एस फेज में, और क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जी1 फेज है कंसिस्ट ऑफ फोर सब फेजेस, इसमें क्या है, कंपिटेंस कंपिटेंस है यानी कि मुकाबला है, इसको जी1 ए कहते हैं। एंट्री है, इसको जी1 टू बी कहते हैं। प्रोग्रेशन है, इसको जी1 सी कहते हैं। असेंबली है, इसको जी1 डी कहते हैं। These सब phases टेम्परेचर एंड एडिशनल इनहिबिटिंग फैक्टर, ये हम खुद से रोक सकते हैं ग्रोथ फैक्टर को लिमिट करके, न्यूट्रिएंट सप्लाई को कम करके, टेम्परेचर चेंज करके, या कोई इनहिबिटरी फैक्टर दे के। A rapidly dividing human cell which divide every 24 hours spend 9 hours in G1 phase, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। The DNA in G1 diploid eukaryotic cell is 2n, meaning there are two sets of chromosome present in a cell. The genetic material exists as a chromatin. There is restriction point present at the end of G1 phase. सिग्नल फ्रॉम, इसमें हर फेज के बाद ना रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, बेशक वो G1 फेज है, G2 फेज है, M फेज है या S फेज है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट हर जगह मौजूद होते हैं। Signal from the extracellular growth factor are transduction in a typical manner. Growth factor bind to the receptor on the surface. Accumulation of cyclin D is essential. Cyclin are a family of protein that control the progression of cells through the cell cycle by activating ये वाला enzyme. By activating cyclic dependent kinases enzymes, cyclin D act as a माइटोजेनिक सिग्नल सेंसर। तो ये जो है फास्फोरिलेशन करता है, जिसकी वजह से सिग्नल मिलता है कि अगली स्टेज पे जाना है। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ है, न्यू प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड, क्रोमोसोम आर अनबाउंड, क्रोमैटिन मटेरियल आर फॉर्म्ड, प्रिपेयरिंग फॉर डीएनए सिंथेसिस इन द एस फेज। एस फेज क्या होता है इसमें, उसमें जो एम फेज एम वन G1 फेज लाने के लिए क्या था कि साइक्लिन डी की जरूरत थी। इधर को किसकी जरूरत है, साइक्लिन ई, जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को जाके एक्टिव करती है, और साइक्लिन ए की जरूरत है जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को आगे एक्टिवेट करती है। रेगुलेट द प्रोसेस इन फेजेस एस। तो साइक्लिन डी है वो एम फेज की को कंट्रोल कर रही होती है, और जो G1 फेज को कंट्रोल कर रही होती है। किसको, साइक्लिन डी किसको कंट्रोल कर रही होती है, G1 फेज को कंट्रोल कर रही होती है, गैप 1 स्टेज को। और साइक्लिन ई जो है और ए है, ये एस फेज को कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि एस फेज को लाने में कंट्रोल कर रही होती है। बाय फास्फोराइलेटिंग एंड एक्टिवेटिंग प्रोटीन एंड एंजाइम दैट आर इन्वॉल्वड इन द डीएनए सिंथेसिस। तो ये जो काइनेजेस हैं ऐसी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जो आगे डीएनए सिंथेसिस में जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं जाके। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए सिंथेसिस अकर, द डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट, ऑल क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड। तो जब एक क्रोमेटेड होता है, ये आप दो दो हो जाते हैं। दिस पीरियड लास्ट फॉर 35 to 40% ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, ये 35 to 40%। ड्यूरिंग दिस फेज synthesis is completed as quickly as possible due to exposed bases. Base pairs may be destroyed by the external protein like drugs or any mutagen such as nicotine. Cyclin, when bound with the dependent kinases such as cyclin dependent kinases 1 protein, form the maturation promoting factor.
जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मेचुरेशन promoting factor activate the other protein through phosphorylation. These phosphorylation protein in turn are responsible for event during the cell cycle such as microtubule formation and chromatin remodeling. ये समरी है डीएनए सिंथेसिस की। Cell makes a copy of its entire sets of chromosomes. Why it is necessary? What would the chromosome look like? No. Chromosome that have duplicated will have two sister chromatid. पहले एक होता है, अब ये टू सिस्टर क्रोमाटिड एक जैसे क्रोमाटिड्स आ जाते हैं। तो इसमें सिस्टर क्रोमाटिड अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर के साथ। ठीक है, इधर एक कैनाटोकैन कोर प्रोटीन भी होती है इसके ऊपर। सिस्टर क्रोमैटिड हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन होती है तो वो एक जैसे सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं। अब G2 फेज है प्री माइटोटिक फेज है। ठीक है, ये माइटोसिस के पहले वाली गैप फेज है। ठीक है, तो पहले हमने अभी पढ़ लिया है G0 फेज, उसके बाद G1 फेज पढ़ा है, फिर हमने S फेज पढ़ा है, अब G2 फेज पढ़ने लगे हैं। The G2 phase is the gap period between S phase and mitotic phase of the cell cycle. It is the second growth phase. It is a period of rapid cell growth and protein synthesis which the cell ready itself for mitosis. तो इसमें सारी चीजें बन जाती हैं जो माइटोसिस में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस फेज लाइक मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, ribosomal RNA synthesis also occur. It is necessary for part of the cell cycle. This phase has double the number of chromosome, क्योंकि वो रेप्लिकेशन के बाद डबल हो जाता है। ऑल द अदर सेलुलर कंपोनेंट आर डुप्लीकेटेड फॉर द टू डेटर सेल। साइक्लिन ए, पहले में हमने G1 फेज में हमने पढ़ा था साइक्लिन डी का रोल है। दूसरी हमने एस फेज में हमने पढ़ा था कि उसमें साइक्लिन ई का रोल है ज़्यादातर, और साइक्लिन ए का भी थोड़ा सा रोल है। इसमें जो रोल है वो साइक्लिन ए का है, साइक्लिन बी का है। ये एक्टिवेट करते हैं नेसेसरी फॉर ऐसी प्रोटीन को जो नेसेसरी होती हैं कि जो अगली फेज है फेज में चेक पॉइंट 2 में जाके एंटर हो जाए। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स, these sense DNA damage both before the cell enter S phase। ठीक है, तो ये as well as the S phase। Damage to DNA before the cell enter the S phase inhibit the action of CDK2, thus डिपेंडेंट काइनेज 2S को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल साइकिल है वो उसकी स्टॉप हो जाती है प्रोग्रेस until the damage can be repaired. If the damage is so severe that it cannot be repaired, then the cell is destroyed by apoptosis. तो एपोप्टोसिस के दौरान जो है सेल डाई हो जाता है अगर जो डीएनए की रिपेयरिंग नहीं होती। डैमेज किस वजह से हो सकता है? यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है टू डीएनए आफ्टर एस फेज, inhibit the action of cyclic dependent kinase 1, thus preventing the cell from proceeding from G2 to A। तो ये जो पहला है अगर डैमेज हुआ है ड्यूरिंग तो एस फेज, तो क्या करेगा वो जो अगली फेज है उसमें एंट्री नहीं होने देगा। ठीक है, और अगर G2 फेज में हुआ है तो उसमें क्या होगा, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेजेस 1 ब्लॉक हो जाएंगे और ये माइटोसिस में एंटर नहीं होगा। In the S phase, if the DNA replication stop at any point of the DNA, the progress through the cell cycle is altered until the problem is solved। अगर किसी वजह से रेप्लिकेशन रुक जाती है तो
फिर वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकता। तो ये ओवरव्यू है G2 फेज का। सेल ग्रोज लार्जर इन साइज इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ये आप देख सकते हैं लार्जर इन साइज हो जाए। ये फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप का व्यू है। प्रोड्यूस ऑर्गेनेली एंड स्ट्रक्चर नीडेड फॉर सेल डिवीजन, सारी चीज़ें सेंट्रीओल्स वगैरह सारा कुछ सिंथेसाइज हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो जाता है, सारा कुछ चीज़ें डुप्लीकेट हो जाती हैं फॉर सेल डिवीजन। और गैप टू जो होता है ये इसको हम शार्टेस्ट फेज भी कहते हैं, लेकिन एम फेज सबसे शार्ट है, लेकिन इस जो गैप टू है वो इंटरफेस की जो है शार्टेस्ट फेज है। G2 चेक पॉइंट मैंने कहा था डीएनए इज रेप्लिकेटर सेल्स मस्ट बी लार्ज इनफ टू एंटर द माइटोसिस फेज, environmental is must be suitable to enter the mitosis phase। तो ये इसका चेक पॉइंट आगे एम फेज है। मोस्टली जो M2 में जब आ जाता है सेल तो वो एम माइटोसिस में चला ही जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें रेप्लिकेट हो चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं। तो ये मोस्टली जो स्टॉपेज आती है वो आती है ड्यू टू डीएनए डैमेज। वो डैमेज किसी वजह से भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज या दूसरी म्यूटाजन के लिए जरिए भी हो सकता है, या सेल की ग्रोथ अच्छी ना हुई हो तो ये भी हो सकता है कि जो है एम फेज G2 cell gap 2 cells are divided into two daughter cells which may enter the cell cycle again at G1 phase and come out of the cycle to the G0 phase. Mitosis is the distribution of two sets of chromosomes into two separate and equal nuclei. This is the division phase. During this phase, cell divide into two daughter cells जो जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं. This phase has a short duration. A typical human cell cycle has a ड्यूरेशन ऑफ 90 आवर्स, जिसमें से जो 1 घंटा या 45 मिनट होते हैं इस माइटोसिस के लिए। दिस फेज हैज टू सब फेजेस कॉल्ड कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। Karyokinesis refers to the cell division of nucleus into two daughter nuclei. It has four substages, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. साइटोकिनेसिस में क्या होता है, रेफर टू द सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स। ठीक है। प्रोफेज माइटोट स्पिंडल फॉर्मेशन होती है इसमें। मेटाफेज प्लेट इसमें बनती है। एनाफेज इसमें माइटोटिक अपरेटस बनता है। टीलोफेज में क्या होता है, साइटोकिनेसिस होती है। M phase cell division. All of the cell energy is devoted to the process of cell division. M phase is divided into mitosis and cytokinesis. Explain why the chromosome would be condensed in M phase. क्यों कंडेंस होते हैं, ताकि डिवीजन हो जाए। तो इसको याद रखने के लिए पी मैट का फार्मूला याद रखें। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। तो एक्टिविटी कैंडी मॉडल क्या है, यूज कैंडी टू रिप्रेजेंट क्रोमोसोम, सेंट्रियोल, स्पिंडल fibers and nuclear valve. Set up your cell in G2 phase. Use additional candy to create the structure of a prophase. Create metaphase structure by making changes to your prophase structure. Create anaphase structure by making changes to your metaphase structure. Create telophase cytokinesis structure by making changes to your metaphase structure. ये आप देखें प्रोफेज क्रोमोसोम कंडेंस, जिसमें क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है और वो नजर आना शुरू हो जाती है। नो लॉन्गर क्रोमेटिन मटेरियल, ये आप देखें ये नजर आना शुरू हो गए क्रोमोसोम। न्यूक्लियर एनवेलप जो पहले बना होता है वो टूट जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स ऑफ द सेल। स्पिंडल फाइबर बिगन टू एक्सटेंड फ्रॉम द पोल। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी पोल्स की तरफ चले जाएंगे और उनसे फिर फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। इमेज शोइंग द क्रोमोसोम कंडेंसिंग। ये देखें क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो डिसअपीयर होना शुरू हो गया
और क्रोमैटर मटेरियल जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर जो कि सेंटर में होती है, जिस सेंट्रोमियर के ऊपर है, वो जाके लगते हैं और क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं और क्या बनती है, मेटाफेज प्लेट बनती है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम थ्रू काइनेटोकोर प्रोटीन। इसमें काइनेटोकोर प्रोटीन के जरिए जुड़े होते हैं। ये आप मेटाफेज देखते हैं, क्रोमोसोम सेंटर में आ गए हैं, स्पिंडल अपरेटस बन गया है, सेंट्रियोल ने बना दिया है, मेटाफेज है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिंग फोर्स होती है कि वो ये सेंट्रल से प्रोटीन कट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जो क्रोमैट क्रोमाटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमाटिड हैं, वो सेपरेट होके अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर शार्टन पुलिंग द क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल। ये देखें, ये प्रोटीन कट हो गई है सेंटर से, तो क्रोमाटिड मटेरियल पुल हो जाते हैं अपोजिट पोल में। सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट एट द सेंट्रोमियर एंड मूव टू द पोल्स। ये आप देख सकते हैं एनाफेज इमेज शोइंग द क्रोमोसोम मूविंग टू द पोल्स। ये पुल कर रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर जो है ना, पुल कर रहे हैं उसको साइड में। क्रोमोसोम अनकॉइल, ये जो है टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल करते हैं एंड बिकम इनविजिबल। वो फिर नजर आना बंद होना, न्यूक्लियर एनवेल्प भी बन जाता है, यहाँ से ये न्यूक्लियर एनवेल्प बन जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं अगर साइमल्टेनियसली विद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ, साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी साथ साथ शुरू हो जाती है अगर डॉटर सेल हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। टीलोफेज में क्या होता है, इमेज इज शोइंग क्रोमोसोम अनकॉइलिंग। ठीक है, ये देखें क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइलिंग और न्यूक्लियर एनवेल्प रिफॉर्म, ये न्यूक्लियर एनवेल्प रिफॉर्म हो गया। सेपरेशन ऑफ सेल एंड सेल कंटेंट, साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहेंगे। ठीक है, इसमें ऑर्गेनेली और सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो डिफरेंट जो है ना साइज के सेल बनते हैं। ठीक है, मोस्टली वो आइडेंटिकल होते हैं, बाज़ बात वो डिफरेंट साइज के होते हैं। डज नॉट हैव टू बी ऑन इक्वल डिवीजन, डॉटर सेल्स है कैन बी डिफरेंट साइजेस हैव डिफरेंट सेलुलर कंटेंट बट न्यूक्लियर कंटेंट इज द सेम। न्यूक्लियर कंटेंट सब में सेम होती है। एग्जाम्पल क्या है, बडिंग की एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल, pinching the cell membrane forming a furrow to produce two cells। ये एनिमल प्लांट्स के अंदर है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन द सेंटर ऑफ द टू सेल्स एंड ए सेल इज कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स। ये फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा है, तो ये सेल प्लेट बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये आप साइटोकिनेसिस को देख सकते हैं, टीलोफेज प्लस साइटोकिनेसिस। ये टीलोफेज में दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, ये इंटरफेज है, दो सेल बन गए हैं। ठीक है, आउटकम ऑफ माइटोसिस क्या है, टू डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल पेरेंट सेल। प्रैक्टिस क्या है, फॉर ईच डायग्राम इसको आइडेंटिफाई करें कौन सी फेज है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बी वाला क्या है, प्रोफेज है, डी वाला क्या है, मेटाफेज है, ए वाला क्या है, एनाफेज, और ये टीलोफेज है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। एक रह गई माइटोसिस।